السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبد المغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ کتاگوڑم تھرمل پاور پلانٹ سے برقی پیداوار کا آغاز، 800 میگا واٹ برقی پیداوار ہوگی، جینکو کے سی ایم ڈی پربھاکر کا اعلان۔ ڈبل بیڈ روم مکانات کے تعمیراتی کاموں کا کے ٹی آر نے لیا جائزہ، ضیاء گوڑہ میں 840 مکانات کے تعمیری کام کا 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ اگست تک مشن بھگیرتا کے کام مکمل کریں، کام نہ کرنے والے کانٹریکٹرز کو برخاست کرنے وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ حلقہ یاقوت پورہ میں بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں کروڑوں روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح۔ اور ہفتے کی رات بی ایس مقتا، شمس آباد، شنکر پلی کے علاقوں میں پولیس کا کارٹن سرچ، 12 مشتبہ افراد حراست میں، کئی گاڑیاں ہوئی ضبط۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد 800 میگا واٹ کتاگوڑم تھرمل پلانٹ سے برقی پیداوار کا آغاز کیا گیا ہے۔ فروری 2015 میں اس پروجیکٹ کا کام شروع کیا گیا تھا۔ 40 ماہ کے اندر تعمیراتی کام مکمل کرنے کے بعد ہفتے کی رات ریاستی جینکو کے سی ایم ڈی پربھاکر راؤ نے برقی پیداوار کا آغاز کیا۔ اس موقع پر پربھاکر راؤ نے کہا کہ 48 مہینوں کے کاموں کو 40 مہینوں میں مکمل کیا گیا ہے۔ 1 ماہ کے بعد کمرشل برقی کی پیداوار کا آغاز ہو جائے گا اور اسے ریاستی گریڈ کو سربراہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں برقی پیداوار سے ریاستی حکومت پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے ضیاء گوڑہ علاقے میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ ایڈیشنل کمشنر ہاؤسنگ کے علاوہ دیگر عہدیدار موجود تھے۔ گزشتہ سال 26 جولائی کو 71 کروڑ کی لاگت سے 12 بلاک میں 840 ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کیے گئے، سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ کے ٹی آر نے تعمیراتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 2 مہینوں میں تعمیراتی کاموں کو مکمل کریں۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ان مکانات میں دیگر بنیادی سہولتوں کو بھی فراہم کیا جائے۔ انتخابات جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں، مشن بھگیرتا اسکیم کے ذریعے صاف پینے کا پانی فراہم کرنے کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ ہفتے کی رات اجلاس طلب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تمام ریزروائرز میں مشن بھگیرتا اسکیم کے لیے درکار پانی کو محفوظ رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مشن بھگیرتا اسکیم کے پانی کے استعمال کے بعد ہی زرعی شعبے کو پانی دیا جائے۔ اس سلسلے میں بہت جلد احکامات بھی جاری کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ نل کے ذریعے 25,000 دیہی علاقوں کو پینے کا پانی فراہم کرنے کا نشانہ رکھا گیا تھا، لیکن اب تک صرف 12,000 دیہی علاقوں کو ہی پانی فراہم کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگست کے آخر تک باقی 13,000 علاقوں کو پانی کی سربراہی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کام نہ کرنے والے کانٹریکٹرز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مشن بھگیرتا اسکیم پر جی ایس ٹی کا جو اضافی بوجھ پڑے گا، اس کو حکومت ہی برداشت کرے گی۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن چنچلم تالاب کٹا میں اہم اور بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والے کروڑوں روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ رکن اسمبلی ممتاز احمد خان اور متعلقہ رکن بلدیہ نسرین بیگم کے ہمراہ انہوں نے تالاب کٹا کے مختلف محلے جات کا پیدل دورہ کرتے ہوئے ایس ڈبلیو ڈرین، سی سی روڈ، بڑی آبی پائپ لائن کی تنصیب اور دیگر ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ مقامی نوجوانوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی، جنہوں نے بیرسٹر اویسی کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ اس کے علاوہ رکن پارلیمنٹ نے سنتوش نگر بلدی حلقے میں بھی مجلس کی نمائندگی و تجاویز پر منظور شدہ ترقیاتی کاموں کا ممتاز احمد خان اور رکن بلدیہ مظفر حسین کے ہمراہ افتتاح کیا۔ حلقے سے دیگر اراکین بلدیہ واجد علی خان، ڈاکٹر سمینہ، سہیل قادری اور نمائندے رکن ابو راہیل کے علاوہ
याकूत पुरा के मजलिस जिम्मेदारों और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। आज सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बारिश असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों हल्के चिंचलम तालाब कट्टे के अंदर सीवर लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, रोडों के करोड़ों रुपए के कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। और आज सलाउद्दीन नगर के अंदर जहां पर बेसिक कम्युनिटीज बिल्कुल, मैं जहां तक समझता हूं कि 20% भी नहीं थे, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर पानी की लाइन का था। अल्हम्दुलिल्लाह 50 लाख रुपए एमएलए लाइट फंड से देकर काम मंजूर करवाया गया और काम शुरू भी हो चुका है। और 16 - 16.5 लाख रुपए से बाद गलियों के अंदर सीवर लाइन और वाटर लाइन का काम बाकी है, वो भी मंजूर हुआ। इंशाल्लाह वो भी काम मुकम्मल हो जाएंगे। उसके अलावा 50 लाख से ज्यादा के सीसी रोड भी मंजूर हो चुके हैं। बहरहाल इस इलाके के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा के काम मंजूर हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में रहकर अवाम से के मसाइल से वक़्फ़ियत हासिल करके रात और दिन कोशिश करते आ रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से इतवार के दिन राजभवन में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विजयवाड़ा के दौरे, SC ST IAS अहदेदारों को नज़रअंदाज किए जाने के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि रियासती मानसून असेंबली सेशन और मौजूद सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा ने इतवार के दिन प्रगति भवन पहुंचकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से खैर सगाली मुलाकात की। HD देवेगौड़ा शादी की तकरीब के लिए हैदराबाद आए थे। इसी दौरान इन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान इन्होंने मौजूदा सियासी हालात पर गुफ्तगू की। वाज़ेह है कि ये मुलाकात हफ्ते की शाम को ही होने वाली थी। रियासत तेलंगाना में क्या मुकर्ररा वक्त से कबल असम्बली के इंतखाबात मुनक्किद होंगे? ये वो सवाल है जो रियासत की सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बन गया है। बरसर इक़्तिदार TRS पार्टी के सरबराह वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इशारों किनाइयों में इस साल के अवाखिर तक इंतखाबात का जो अंदिया दिया है, इस पर पेश है हमारे नुमाइंदे 4TV शमसुद्दीन फिरोज़ की ये रिपोर्ट। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के क़यास आराइयों के साथ ही रियासत में इंतखाबी माहौल पैदा हो गया है। इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त होंगे, इस पर मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव क़ब्ल अज़ इंतखाबात के लिए मरकज़ के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। मरकज़ी BJP हुकूमत अगर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का फ़ैसला लेती है तो KCR भी असम्बली तहलील करते हुए क़ब्ल अज़ इंतखाबात के लिए जाएंगे। KCR के दहली दौरे और इसके बाद KTR के दहली दौरे के बाद रियासत में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की क़यास आराइयाँ ज़ोर पकड़ने लगीं। TRS पार्टी के ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मरकज़ फ़ैसला नहीं लेता है तो रियासत में TRS क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए जा सकती है। देखना यह है कि KCR का ऊँट किस करवट बैठता है। माजी के तल्ख़ तजुर्बात को नज़र में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि KCR जो वो कहते हैं इसे कभी नहीं करते। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि किसानों के रैतु बंधु स्कीम के चलते और अगस्त में किसानों की बीमा स्कीम के आगाज़ के बाद वो आसानी से किसानों के वोट हासिल करने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए जा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिशन भगीरथा के जरिए घर घर पीने का पानी फराहम करने के बाद ही वोट मांगने का अज़्म KCR कर चुके हैं। मिशन भगीरथा स्कीम के तहत अब तक सिर्फ निस्फ काम ही मुकम्मल हुआ। इसके अलावा डबल बेडरूम मकानात के ऐलान ने आवाम को काफ़ी मुतासिर किया है। इसमें भी कुछ खास पेशरफ नहीं हुई। ऐसे में KCR का क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का फैसला खुद KCR के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। अब सवाल यह है कि TRS पार्टी अचानक क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का चर्चा क्यों कर रही है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात और आम इंतखाबात में सिर्फ 4 महीने का फ़र्क है। ऐसे में KCR इन 4 महीनों से फ़ायदा उठाते हुए मिशन भगीरथा
डबल बेडरूम, कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे कामों में तेजी से पेशरफ्त करते हुए इंतखाबात के लिए जा सकते हैं। लेकिन केसीआर का कब्ल अज वक्त इंतखाबात का प्रोपेगेंडा अपोजिशन और अवाम के जहनों को मुंतशिर करने की हिकमत अमली भी हो सकती है। कल तक रियासत में पंचायत इंतखाबात की तैयारियों का चर्चा चल रहा था और अब कब्ल अज वक्त इंतखाबात की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि अवाम भी कब्ल अज वक्त इंतखाबात की मूड में आ जाएंगे, केसीआर के वादों पर तवज्जो नहीं देंगे। बहरकैफ कब्ल अज वक्त इंतखाबात में कितनी सच्चाई है, माह अगस्त के बाद इसकी तस्वीर सामने आ जाएगी। फिलहाल ये सियासी हिकमत अमली ही दिखाई दे रही है जिसको केसीआर रूबे अमल ला रहे हैं ताकि वो अपनी खामियों को छुपाकर अवाम के सामने फिर एक बार हीरो बन सके। कांग्रेस के साबिक वजीर मुकेश गौड़ की टीआरएस में शमूलियत पर तजस्सुस बरकरार है। इतवार के दिन मुकेश गौड़ ने अपनी सालगिरह के मौके पर तकरीब मुनक्किद की थी जिसमें कांग्रेस के पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा दीगर ने मुकेश गौड़ को मुबारकबाद पेश की। बाद हज़ार टीआरएस के सिटी सदर एम हनुमंतराव ने मुकेश गौड़ से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुकेश गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीआरएस में शमूलियत के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। अपने कारकुनों और हामियों से बातचीत के बाद ही वो फैसला लेंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस में बीसी तबके को दबाने की दानम नागेंद्र के इल्ज़ाम को उन्होंने बेबुनियाद करार दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में उनको अहमियत नहीं दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस में ये आम बात है। ज़राए के मुताबिक मुकेश गौड़ कल पीसीसी सदर से मुलाकात करेंगे। प्रजा राज्यम पार्टी के लीडर व साबिक हल्के मुशीराबाद के उम्मीदवार पीवी अशोक ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। गांधी भवन में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की मौजूदगी में अपने हामियों के साथ वो कांग्रेस में शामिल हो गए। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से कमीशन खाने वाली इस हुकूमत को सियासी गुरूर आ चुका है। इन 4 सालों में शहर की सड़कों के गड्ढे तक दुरुस्त करने में ये नाकाम रही है। कांग्रेस के दौर में शुरू किए गए प्रोग्रामों को अपने सर वो बांध रही है। इन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में टीआरएस की शिकस्त यकीनी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पीवी अशोक के पार्टी में शामिल होने से शहर में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में दूसरे दिन भी फुटपाथ पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी का अमल जारी रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी की जा रही है। टोली चौकी, मलकपेटगंज, मियाँपुर, रेतीबोली, चौरास्ता, नालन नगर और दीगर इलाकों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की खुसूसी टीमों ने कब्जों को बर्खास्त किया। गुज़िश्ता 2 दिनों में 2341 गैर कानूनी तामीरात को बर्खास्त किया गया है। एकम जुलाई इतवार के दिन से राशन डीलर्स की हड़ताल का आगाज हुआ। हुकूमत की वार्निंग के बावजूद राशन डीलर्स ने हड़ताल का फैसला वापस नहीं लिया। रियासत में जुमला 17,022 दुकानें हैं जिनमें 3,100 राशन डीलर्स ने ही डीडी दाखिल की है। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन डीलर्स को फी क्विंटल 17 रुपये कमीशन दिया जाना चाहिए, लेकिन हुकूमत सिर्फ 20 रुपये कमीशन दे रही है। इसी मुतालबे को लेकर राशन डीलर्स हड़ताल कर रहे हैं। कमिश्नर सिविल सप्लाईज अकुन सब्रवाल ने बताया कि हड़ताल के पेश नज़र तमाम मुतालबात इंतजामात कर लिए गए हैं। इतवार के दिन से ही गोदाम से सरबराही मुकामात के लिए चावल रवाना कर दिए गए हैं। 5 जुलाई से अवाम को चावल सरबराह किया जाएगा। इन्होंने बताया कि मुतल्लका अहदेदारों को हिदायतें जारी की गई हैं कि अवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। महकमे पुलिस में एसआई की 1217 और कांस्टेबल्स की 16,925 मुख्तलिफ जायदादों के लिए 7 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। तेलंगाना रियासती सतह के पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने बताया कि अलहदा तौर पर जारी किए गए 4 एलामिये के तहत सिविल एसआई के लिए 1,84,400 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि सिविल कांस्टेबल्स के लिए 4,59,457 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। कम्युनिकेशन कांस्टेबल के लिए 14,487 और ड्राइवर कांस्टेबल्स के लिए 13,048 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इम्कान है कि माह अगस्त में इसके इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 2 जुलाई से उर्दू मस्कन में सुबह 7 बजे तक 11 बजे दिन तक दरख्वास्तें दाखिल किए उम्मीदवारों को तरबियत दी जाएगी।
ज़हीराबाद के मजलिसी वफ़द ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और उन्हें मुकामी अवामी मसाइल और सियासी हालात से वाकिफ़ करवाया। वफ़द में सदर इब्तदाई मोहम्मद लुकमान और दूसरे मौजूद रहे। रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज, नायब मुअतमद हुसैन अनवर और सदर शोबे तंजीम अब्दुल हक नज़ीर ने उनसे मुलाकात की और मसाइल की यकसुई के लिए सदर मजलिस को वाकिफ़ करवाने का तयक़ुन दिया। हुकूमत ने चार मीनार के इलाके को पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस कर दिया। यहाँ गाड़ियों की आमद मना है। इस इलाके में सयाहों के लिए एक सहूलत समझी जा रही है। ताहम रात के औकात में मुख्तलिफ इलाकों से नौजवान लड़के लड़कियाँ यहाँ मौज मस्ती के लिए पहुँच रहे हैं। बर्थडे पार्टियाँ की जा रही हैं। खुद पुलिस भी इस तरह की पार्टियाँ नज़्म कर रही हैं। क्या पैदल राहरू प्रोजेक्ट इसी मकसद के लिए किया गया? पेश है नुमाइंदे 4TV काशिफ अली खान की ये रिपोर्ट। तारीखी चार मीनार के दामन को पैदल चलने वालों के लिए खोल दिया गया है। वो मुकाम जहां कभी गाड़ियों की भीड़ भाड़ होती थी, अब हुजूम की चहलकदमी का मरकज़ बन गया है। चार मीनार की सलामती और इसको खूबसूरत बनाने के नाम पर यह काम तो किया गया, लेकिन एक तरफ शहर बिलखुसूस जुनूबी इलाकों में पुलिस चाबूतरा मिशन के नाम पर आवारा नौजवानों की पकड़ धकड़ करती है, तो दूसरी तरफ इसने चार मीनार के दामन में रात देर गए आवारा गर्द लड़के और लड़कियों को खुली छूट दे रखी है। चार मीनार दरअसल एक मस्जिद की इमारत है। बालाई सतह पर मस्जिद वाक़े है। दरमियान में पाक पंजतन के इस्माए ग्रामी हैं। एक तरफ गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का छिल्ला है, तो उससे मुत्तसिल नौज़ायद एक मजहबी निशान बना दिया गया है। शाम जैसे जैसे ढलती है और रात में तब्दील होती जाती है, मुख्तलिफ इलाकों से मौज मस्ती करने नौजवान लड़के और लड़कियों के झत्ते चार मीनार के दामन में आना शुरू हो जाते हैं। चार मीनार का दामन पुरफिज़ा होता है। शहर में शब 12 बजे सारे बाज़ार बंद कर दिए जाते हैं। शब 1 बजे पब वगैरह भी बंद हो जाते हैं। शहर के दीगर तफरी मुकामात निकलिस रोड, टैंक बंड वगैरह पर हुजूम को शब के औकात में बैठने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन चार मीनार का दामन बदस्तूर खुला रहता है। यही सबब है कि ना सिर्फ शहर के मुख्तलिफ इलाकों के बल्कि दीगर इलाकों से भी मौज मस्ती करने वाले जो खुद को नाइट बर्ड समझते हैं चार मीनार पहुंच जाते हैं। चार मीनार के दामन में अब बर्थडे पार्टियां भी होने लगी हैं। नौजवान खुलेआम बर्थडे केक का एहतमाम करते हैं। आवाम को छोड़िए, अब तो पुलिस वालों ने भी इस मुकाम पर मौज मस्ती का एहतमाम शुरू कर दिया है। बर्थडे पार्टियां पुलिस की जानिब से की जाने लगी हैं। यहाँ रात में कारोबार करने वालों की चांदी हो गई। खान पान का नज़म करने वालों ने पैदल राहदारों और रास्ते को मेक शिफ्ट होटल्स में तब्दील कर दिया। सड़कों पर टेबल चेयर डालकर ग्राहकों की खिदमत की जा रही है। चार मीनार के दामन में इस इलाके को 3 पुलिस स्टेशन लगते हैं। चार मीनार पुलिस स्टेशन, हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन और मुगलपुरा पुलिस स्टेशन। रात देर गए है यहाँ हो रही सरगर्मियाँ मौज मस्तियों पर जब एक पुलिस स्टेशन के ओहदेदार से पूछा गया तो इसने जवाब दिया कि फ़लाँ इलाका इसके हुदूद में नहीं आता। जब दूसरे पुलिस स्टेशन के ज़िम्मेदार से इस्तिफ़सार किया गया, यही जवाब आया कि यह इलाका इसके तहत नहीं है। यही जवाब तीसरे पुलिस स्टेशन के ओहदेदार से भी हासिल हुआ। ऐसा महसूस होता है कि पुलिस अमदन इस सारे सरगर्मियों से चश्मपोशी इख्तियार कर ली और चार मीनार के दामन को इलाका गैर करार दिया हो। चार मीनार के चंद कदम पर तारीखी मक्का मस्जिद और दूसरे रुख पर जामिया मस्जिद शुजाया वाक़े है। एक सिमत ट्रैफिक पुलिस स्टेशन तो दूसरी तरफ चार मीनार पुलिस स्टेशन व ACP ऑफिस है, लेकिन रात को मौज मस्ती करने वालों पर नज़र रखने यहाँ पुलिस का कोई कारिंदा मौजूद नहीं होता। पुलिस व मुकामी इंतज़ामिया ने चार मीनार के दामन को नाइट बर्ड्स के लिए खुला छोड़ रखा है, जहां रात देर गए तक ऐसे मनाजिर देखे जा सकते हैं जो हैदराबादी तहजीब और सकाफ़त का मजाक उड़ाते हैं। चार मीनार को पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस करने का क्या यही मकसद होगा?
हर हकीकी हैदराबादी का यही सवाल है। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में पुलिस अमले के खानदानों के साथ मुलाकाती प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में इन्होंने इतवार के दिन बेगमपेट के लॉ एंड ऑर्डर और वुमेन पुलिस स्टेशन के अमले के अफराद खानदान के साथ मुलाकात की। इन्होंने कहा कि पुलिस आवाम के करीब हो रही है। इन्होंने पुलिस अमले से कहा कि वो भी आवाम के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करते हुए उन्हें भी अपने अफराद खानदान की तरह समझें। शमसाबाद इलाके के गणेश नगर में डीसीपी शमसाबाद पीवी पद्मजा की क़यादत में 180 पुलिस मुलाजमीन के साथ हफ्ते की रात 10:30 बजे तक 12:30 बजे कॉटन सर्च किया गया। इस तलाशी मुहिम के दौरान 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया और करीब 250 मकानात की तलाशी ली गई है। दरकार दस्तावेजात ना होने पर 35 टू व्हीलर्स 3 ऑटो को जब्त कर लिया गया। वेस्ट जोन पुलिस ने बीएस मक्ता में 250 पुलिस अमले के साथ कार्टन सर्च मुनक्किद किया। हफ्ते की रात करीब 2 घंटे तक 300 घरों की तलाशी ली गई। 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा दरकार दस्तावेजात ना होने और नंबर प्लेट सही ना होने की वजह से 16 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक और। कोत्तागुड़म थर्मल पावर प्लांट से बरकी पैदावार का आगाज, 800 मेगावाट बरकी पैदावार होगी। जैनको के सीएमडी प्रभाकर का ऐलान। डबल बेडरूम मकानात के तामीराती कामों का केटीआर ने लिया जायजा। जियागुड़े में 840 मकानात के तामीरी काम को 2 माह में मुकम्मल करने की दी हिदायत। अगस्त तक मिशन भगीरथा के काम मुकम्मल करें। काम ना करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को बर्खास्त करने वजीर आला की हिदायत। हल्के याकुतपुरा में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। और हफ्ते की रात बीएस मक्ता, शमसाबाद, शंकरपल्ली के इलाकों में पुलिस का कर्टन सर्च। 12 मुश्तबा अफराद हिरासत में, कई गाड़ियां हुई जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।